SOPs پر عمل کرانے کے لیے فوج بلا لی گئی۔ لوگوں میں خوف ہے، نا احتیاط کر رہے ہیں، اب فوج احتیاط کرائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان، کہا پاک فوج پولیس اور رینجرز کی مدد کرے گی۔ شہروں میں لاک ڈاؤن خطرناک ہوگا، بندشوں سے سب سے زیادہ غریب متاثر ہوتا ہے۔ عوام تعاون کریں تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ماسک پہنے، احتیاط نہ کی تو بھارت جیسے حالات ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو ویکسین کی کمی کا سامنا ہے، قوم مل کر مقابلہ نہیں کرے گی تو وبا سے نہیں جیت سکیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی۔ عید شاپنگ جلدی کر لیں، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اسد عمر نے خبردار کر دیا، نئی پابندیوں کے ساتھ بازار 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ عوام شاپنگ کر لیں، آخری دنوں کا انتظار نہ کریں۔ 5% سے زائد مثبت شرح والے اضلاع میں اسکول کالج مکمل بند کر دیے جائیں گے۔ انڈور کے بعد آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی عید تک پابندی عائد۔ دفتروں کے اوقات 2 بجے تک محدود، صرف 50% عملے کو بلانے کی اجازت۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں، ہمارے نظام صحت پر دباؤ ہے، ہسپتالوں میں اس وقت 90% آکسیجن زیر استعمال ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا، لاہور بدترین متاثر ہے، احتیاط کریں اور کوئی چارہ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کی شرح میں تشویشناک اضافہ، مردان میں کیسز کی شرح 51، لوور دیر میں 45% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں مزید 144 افراد جاں بحق، 5870 نئے کیسز رپورٹ۔ لاہور کے سروسز اسپتال کے وینٹیلیٹرز بھر گئے، بڑے اسپتالوں کے 95% ICUs میں گنجائش ختم۔ پنجاب میں 6% مثبت کیسز پر اسکول بند کرنے کا فیصلہ۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت 11 شہروں میں اسکولز بند رہیں گے۔ A اور O لیول کے فزیکل امتحانات لینے کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ نے طلبہ کی اپیل خارج کر دی۔ وزیر صحت سندھ نے عین 249 بلدیہ میں ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت کورونا کے شکنجے میں، 3.25 لاکھ نئے کیس رپورٹ، مزید 2300 افراد چل بسے۔ آکسیجن کی شدید قلت، ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی، ایک بیڈ پر 3 مریض زیر علاج۔ ہسپتالوں کے باہر لمبی قطاریں، مریض ایمبولینسوں میں دم توڑنے لگے۔ شمشان گھاٹ میں 24 گھنٹے لاشیں جل رہی ہیں۔ رش کے باعث لوگ پیاروں کی میتیں کھیت اور فٹ پاتھوں پر جلانے پر مجبور۔ مذہبی تہوار کمبھ کے میلے کو تباہی کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ سینکڑوں افراد نے ایک ساتھ گنگا میں ڈبکی لگائی۔ میلے میں شریک افراد کو کورونا ہوا، 8 مذہبی رہنما بھی ہسپتال میں داخل۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل سے رہا، کارکنوں کی بڑی تعداد نے جیل کے باہر استقبال کیا، نعرے بازی گل پاشی کی گئی۔ بیٹے حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور دیگر شہباز شریف کو لینے پہنچے۔ شہباز شریف اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچے تو مریم نواز بھی چچا سے ملنے پہنچ گئیں۔ شہباز شریف نے بڑے بھائی نواز شریف سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ شہباز شریف کو زائد اثاثہ جات کیس میں 7 ماہ قید کے بعد ضمانت پر رہائی ملی۔ شین جیل سے باہر آ چکی ہے، نون سے شین کا جنم یقینی ہے، نون قصہ پرینہ بنے گی۔ شین جیل سے باہر آ گئی، نون سے علیحدگی یقینی ہے، نون لیگ اب قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا رد عمل، کہا شہباز شریف کے ترجمان آج ان کی رہائی پر بغلیں بجا رہے ہیں، یہ آج تک نہیں بتا سکے کہ TTs منظور پاپڑ والے کو کیسے گئی۔ ضمانت بے گناہی کا ثبوت نہیں، مقدمہ چلتا رہے گا۔ اشتہاری نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کر دی جائیں، احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں حکم جاری کر دیا۔ نیب کی درخواست منظور، عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا جہاں جہاں نواز شریف کی جائیداد ہے، متعلقہ صوبائی حکومتیں انہیں نیلام کر سکیں گی۔ جائیدادیں اور گاڑیاں فروخت کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ مجھے یہ ایک دفعہ کرنے دیں، یہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں۔ جی
कौमी असम्बली का जुमा 16 अप्रैल 2021 को तलब करदा इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर बज़रिया हाज़ा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास मुलतवी कर दिया। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने नामूस रिसालत की करारदाद एजेंडे से हटा दी। एहतजाज पर हुकूमत और स्पीकर राह फरार इख्तियार कर गए। हमारे और कौम के जज्बात से खेलने पर ये माफ़ी मांगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वजीर आज़म ऐवान से गायब हैं, सफ़ीर को निकालना हुकूमत के इख्तियार में है। अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, सबको बेवकूफ़ बनाकर वक्त ज़ाया न किया जाए। कौमी असेंबली का माहौल बेहतर होना चाहिए। स्पीकर के साथ बैठकर मामला तय करने चाहिए। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, आज़ाद सेनेटर मुझे वोट देते हैं तो इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। हम इस्तीफे देते हैं या नहीं, मगर नून लीग ने नहीं देने थे। जहांगीर तरीन की हुकूमती अरकान से मुलाकातें। तहरीक इंसाफ के 2 MNAs और 1 रुकन सूबाई असम्बली की मुलाकात। साहिबजादा महबूब सुल्तान, साहिबजादा अमीर सुल्तान और उमर तनवीर भट्ट का जहांगीर तरीन से यकजहती का इजहार। कहा, साजिश का मिलकर मुकाबला करेंगे। राजा रियाज की क़यादत में जहांगीर तरीन के हामी अरकान की गवर्नर पंजाब के हमराह बैठक, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी सरवर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, जल्द यकीनी बनाने में किरदार निभाने की यकीन दहानी। सयाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुल्क पर चढ़ा कर्जा उतार सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरी में कोहिस्तान यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हर साल सयाहत दुगनी हो रही है। सब मरी आ जाते हैं, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सयाहती मकाम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब, बस गरीब और कमज़ोर का पेट झूठे वादों से नहीं भरता। घर में रोटी और रोजगार होगा तो सियाहत होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। बोली, इमरान साहब, आपके अहमकाना फलसफे बहुत हो गए, अब घर जाएं। जुबानी जमा खर्च से सियाहत को फरोग मिलता है, न मईशत ठीक होती है। आपके इंतकामी सियासी बयानिए और मुनाफिकाना सियासत अवाम ने मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की समत में तब्दीली का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मुबैना तब्दीली की तहकीकात कराएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। ज़राए का कहना है, रिंग रोड में मुबैना तब्दीली बाज़ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। तब्दीली से प्रोजेक्ट में इजाफी 25 अरब रुपए लागत आएगी। समत तब्दीली में चंद बाअसर सियासतदान मफाद परस्त ग्रुप मुलव्विस हैं। इंक्वायरी से पता चलेगा तब्दीली किसके कहने पर की गई और किसे फ़ायदा होगा। जिम्मेदार साबित होने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त। दूसरे T20 में 119 रन का हदफ हासिल न कर सके। पूरी टीम 99 रन पर आउट। कप्तान बाबर आजम 41 और दानिश अजीज के 22 रन के अलावा कोई बल्लेबाज न चला। T20 को टेस्ट मैच बना दिया। सबसे कम हदफ हासिल करने में नाकाम। 19 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना। It's a unique opportunity for Afghans. It is important Afghans sit together and find a way forward. The only way forward is through a negotiated political settlement. अफगानों के पास अपने मुल्क में अमन लाने का बेहतरीन मौका है। अफगानिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, अफगान तालिबान अपने मुल्क में अमन के लिए किरदार अदा करें। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान सूरत हाल से अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर होता है। दौरा ईरान में ईरानी क़यादत के साथ अफगान मसले पर बातचीत हुई। कराची के हल्का NA 249 में इंतखाबी मुहिम के दौरान सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और PP उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल को शो कॉज नोटिस जारी। MNA शाहदा रहमानी को वार्निंग लेटर अरसाल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9/0 ऑपरेशन के 54 मुकदमात का फैसला सुना दिया।
12 मुल्जिमान के खिलाफ धमाका खेज मवाद, असलहा एक्ट के इल्जामात साबित न हो सके। फैसल मोटा, उबैद केटू, नादिर शाह, आमिर सरफटा और दीगर मुल्जिमान। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की बार बार मुदाखलत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा दरख्वास्त गुजार बड़ा आदमी है, इसलिए मुदाखलत की जा रही है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मुझे बार बार रगड़ा लगाया जा रहा है। अदालत ने काजी फाइज से पूछे गए 3 सवालों का जवाब विफाक से मांग लिया। जस्टिस काजी फाइज ने सवालात का जवाब तकनीकी तौर पर देने से इनकार कर दिया था। कराची के 2 बड़े नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 26 किलोमीटर गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर हिस्सा तजावुजात से खाली करवा लिया गया। 1600 से जायद कमर्शियल और रिहायशी मकानात गिरा दिए गए। औरंगी नाले के भी 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। किसी के घर का स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो भी मुआवजा देना होगा, सिंध हाई कोर्ट का इंतबाह। ऑपरेशन के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, तो सर जब उनको ऑपरेशन थिएटर में बजाय कि उसका ऑपरेशन किया जाए, उनके साथ अमले ने उनका रैप कर दिया। 3 जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उनका DNA मैच नहीं कर सका, लेकिन अभी भी वो अंडर अरेस्ट हैं। लाड़काना के निजी अस्पताल में दौरान ऑपरेशन खातून की असमत दरी का इंकशाफ। सिंध असेंबली के इजलास में MP राना अंसार का ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के वाक़े पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। शैला रज़ा ने बताया वाक़या 12 मार्च को पेश आया। मुकदमा दर्ज है। खातून को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में बेहोश किया गया। डॉक्टर का DNA मैच नहीं हुआ। अस्पताल के 3 मुलाजिम ज़ेरे हिरासत हैं। कोरोना मरीजों का दूसरे लोगों से मेल जोल हराम करार। सऊदी मुफ्ती आजम ने फतवा दे दिया। शेख अब्दुल अजीज ने कहा कि आवाम वबा की रोकथाम के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें। और समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सुहाना। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद और झंग में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची में गर्मी बढ़ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में हीट वेव नहीं मगर गर्मी का स्पेल है। अगले 3 दिन दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री रहने का इम्कान है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,